Hello, Assalamu alaikum. Welcome to AppSec online program, and I'm your biology teacher, Miss Aisha, and today we are going to start our new chapter, coordination and control. Today topic we are going to discuss about the introduction of the coordination system, the type of the coordination system that is exist within the human body, and the component of the human nervous system, the division of the brain, and the function of the different brain parts, and to controlling the body system. Introduction of biology. Multicellular organisms need coordination for the proper functioning and the response. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में चूँकि इन्वायरमेंट्स के साथ जो सेल के लेवल का जो इंटरेक्शन है चूँकि वो बहुत ज़्यादा कम होने की बेसिस पे हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग के थ्रू बॉडी के अंदर जो हमारे पास प्रॉपर रिस्पॉन्सेज हैं उनको जनरेट करते हुए बॉडी की सर्वाइवल की जा सके. बॉडी चूँकि सिंगल यूनिट के तौर पे एक्ट करती है, दे ऑल ऑफ देम हैव अ रिलेटेड फंक्शन विद ईच अदर, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द ईच अदर, दैट्स व्हाई दे नीड अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सिस्टम. And the multicellular organisms and the human beings, they have a well developed coordination and the control system, and this coordination and the control system is divided into two types. One is a nervous system and the second is a chemical coordination system. The nervous system, which is comprises of the nerves, spinal cord and the brains, and the chemical coordination system is consist of upon the glands and the hormones. And the most important thing that the plant has no chemical coordination, they have only chemical coordination system to show the trophical responses like phototropism. Phototropism is the movement of body plant toward the light, and the geotropism is the movement of plant toward the earth, and the heterotropism is the body part of the plant moving towards the water level. For example, the positive heterotropism is shown by the roots which are moving towards the downward, and during the growth of the seed they moving towards the water instead of the towards the earth. Then the coordination action. For the coordination action, they have to depend upon the chemical coordination system and the nervous coordination system. But whenever the coordination system they have a 5 component, which are stimuli, receptor, coordinators, effector and the response. कोई भी कोऑर्डिनेशन रिएक्शन हमारे पास सिस्टम हो, चाहे वो नर्वस है चाहे वो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इस 5 कंपोनेंट्स के बेसिस पे बॉडी अपने रिएक्शंस को शो करती है. फर्स्ट इज़ अ स्टिमुला which is a change within the body or outside the body which can cause a response within the body. अगर वो रिस्पॉन्स चेंज करिए जनरेट करिए तो वो स्टिमुलाई है, अदरवाइज वो स्टिमुलाई नहीं है. Receptor are those organs which are responsible to detect a change within the environment or within the body. Coordinators, they are actually a control center which receiving all the messages which is coming from the stimuli. They do the analysis, they have to response generator, they have to show the response according to the stimuli, and they also have to store the information for the future use. Fourth is the factor, the organs where response is going to be generated. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जबकि आपके पास एग्जाम्पल डिस्कस किए कि जैसे आप हीट को टच करते हैं तो यहाँ पे जो हीट के एक्सटेंसिव चेंज है वो आपके पास एज अ स्टिमुलाई एक्ट करता है, और उसको रिसीव करने वाला चूँकि आपकी स्किन है तो स्किन आपके पास यहाँ रिसेप्टर एक्ट करती है. यहाँ से मैसेज आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है. स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करते हुए मैसेज को रिसीव करता है. एनालिसिस के बेसिस पर वो एकदम से मैसेज भेजता है मसल्स को, जो मसल्स यहाँ पे इफेक्टर्स हैं, और मसल्स के बेसिस पे हमारे पास ये जो बॉडी है वो हमारे पास चूँकि हमारे पास फ्लेम कर जाती है, तो डेफिनेटली ये जो सोर्स ऑफ हीट से मूव अवे कर देना ये इसका रिस्पॉन्स कहलाएगा, जो कि हमारे पास किसी बेसिस पे हुआ, बेसिस ऑफ स्टिमुलाई है.
आपके पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मैसेज सिर्फ अपने इफेक्टर की तरफ नहीं भेजता, बल्कि यही वाला मैसेज हमारे पास ब्रेन की तरफ भी भेजता है कि इसके बाद जो हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरेट किया है, इसके बाद आपकी बॉडी को क्या रिएक्शन करना चाहिए। चूँकि ब्रेन की तरफ मैसेज जाना, उसके एनालिसिस और देन इसका रिस्पॉन्स जनरेट करने में चूँकि हमारे पास कुछ सेकंड्स लग सकते हैं, और वो सेकंड्स आपकी लाइफ सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पास मैटर करता है उन कुछ सेकंड्स पे। तो लिहाजा स्पाइनल कॉर्ड का फर्स्ट जो आपके पास रिएक्शन होता है वो आपकी बॉडी को सेव करना है और उसको सिक्योर करना है। नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वन एंड अदर. First, the nervous system, the neurons are responsible for the transfer of messages and the reaction and the functioning of a coordination system. तो हम कह सकते हैं neurons are actually a basic unit of the nervous system. While a hormone and a gland, they are the functional and the structural unit of a chemical coordination. Nervous coordination make chemicals which are produced from the neuron, they have to transfer from the one cell to another cells. जबकि chemical coordination में हमारे पास जो हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ग्लैंड्स में, और वो ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स को आपके ब्लड में, ब्लड उसको डिफरेंट आपके बॉडी में सर्कुलेट करने के बाद डिफरेंट इफेक्टर्स तक ट्रांसफ़र करता है, जहाँ पे इसके रिएक्शंस को शो किया जाता है. In this system, the neurons release its neurotransmitter into one or small group of the specific cells. Definitely, आपके पास neurons एक दूसरे की तरफ messages लेके जा रहे हैं, तो small cells, number of cells are involved in this coordination system. लेकिन चूँकि हमारे पास ये जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दी ब्लड है फॉर द ट्रांसफ़र. दैट्स वाई हमारे पास जो ब्लड है वो हमारे पास चूँकि होल बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो हमारे पास डेफिनेटली उसके जो रिएक्शन है या उसका रिस्पॉन्स है वो भी हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सेल्स या हम के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन शो होता है. नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो नर्वस है, दिस हैज़ इमीडिएट इफेक्ट और शो द रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई विद इन इंस्टेंट, विद इन सेकेंड्स आपके पास रिएक्शन जो है वो आपके पास शो होगा. लेकिन जो आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन के अमाउंट की यहाँ एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं कि इंसुलिन का है या आपके पास जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे पास रिलीज़ होने में और उनका जो रिएक्शन है बॉडी के अंदर शो होने में वो टाइम रिक्वायर्ड होता है. हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है कंट्रोल इज़ इफेक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू. आपके पास नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में, जबकि आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास केमिकल स्टिमुलेशन हार्मोन्स भी हैं जो कि ग्लैंड्स को फोर्स करते हैं हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए. उसके बाद टारगेट सेल्स की तरफ हार्मोन्स ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे इफेक्ट जो सेल्स हैं वो एज ए इफेक्टर शो करते हुए अपनी रिएक्शन को शो करते हैं. हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है शो फास्टर रैपिड इफेक्ट. द स्पीड ऑफ द नर्व इज़ अबाउट 100 मीटर्स पर सेकेंड, या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि 120 मीटर पर सेकेंड्स भी हमारे पास आमतौर पर रिकॉर्ड मूव करते हैं. जबकि हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे पास इतना फास्ट एंड जो रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद हमारे पास उस हार्मोन्स को ट्रांसफ़र करता है उन ऑर्गन्स तक, फिर वो ऑर्गन्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं. तो ये प्रोलॉन्ग्ड इफ़ेक्ट है. एक दफ़ा ग्रोथ हार्मोन आपके पास प्रोड्यूस होना शुरू हो गए तो वो सेल उसके अंदर रेप्लिकेट करने में भी टाइम रिक्वायर करते हैं. द केमिकल इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम, द न्यूरोट्रांसमीटर आर शॉर्ट लिव्ड. जैसे पर हम पहुंच गए उसके बाद ये काम ख़त्म, या जो भी इसके अंदर मैसेंजर इसके अंदर इन्वॉल्व है वो जो केमिकल्स प्रोड्यूस हुए थे वो एकदम से अपने आप को ब्रेक डाउन कर देते. जबकि ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए हैं ग्लैंड्स के थ्रू वो अपने आप को एक्टिव रखते हैं काफ़ी ड्यूरेशन के लिए ब्लड में. इसी वजह से जो उसका रिएक्शन है वो भी प्रोलॉन्ग्ड होता है और उससे इफेक्ट जो है वो हम लोग काफ़ी अरसे तक देखते हैं. कंपैरिजन ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस को शो करना चाहें तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, जबकि हार्मोनल जो है वो सिक्रेटरी सेल से मिलकर बनता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, जबकि हार्मोनल जो है वो केमिकल हार्मोन्स के थ्रू ब्लड में पुट करने के बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाता है. स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे पास नर्वस फास्ट जबकि हार्मोनल स्लो प्रोसीजर है, जबकि नर्वस हमारे पास शॉर्ट टर्म और जबकि ये स्लो बट लॉन्ग हमारे पास प्रोसेस है.
रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक सेल्स हमारे पास रिस्पॉन्स को शो करते हैं। जिस तरह से अगर मसल्स के हैंड के मसल्स को मैसेज भेजा गया तो सिर्फ हैंड के मसल्स ही उससे इफेक्ट होंगे, लेकिन हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन है हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो वो आपके होल बॉडी को इफेक्ट करेगा। इसी तरह से इंसुलिन की अमाउंट अगर इंक्रीज हुई है बॉडी के अंदर तो वो होल बॉडी को इफेक्ट करेगी। आपके पास उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन नहीं होता, वाइड स्प्रेड होता है मेजॉरिटी केसेस में। आपके पास जो 12.2 टॉपिक में ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर जो 2 मेजर कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। वन इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज़ कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसके लिए जो एब्रिवेशन यूज़ की जाती है वो कैपिटल CNS है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज़ कंप्राइजेज ऑफ द नर्व्स दैट इज़ अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके लिए आप PNS की एब्रिवेशन आमतौर पर वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है। Nerve cells are the structure and the functional unit of the nervous system. So there are million of the cells which are responsible for the formation of the brain, spinal cord, and peripheral nervous system. The nerve cell is consist of the cell body, axon in the dendrites. This is the cell body. The dendrites and axons are the extension of the cell membrane, and dendrite and axon are differentiated on the basis of the message acceptance and the transfer. The dendrite are responsible to receive the message and move the message toward the cell body, जबकि axon जो है वो message को move away from the cell body response करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स मौजूद होते हैं एक्सॉन के सराउंडिंग में, और हमारे पास आमतौर पे प्रोटेक्शन भी करते हैं। और हमारे पास चूँकि पता है कि नर्व सेल्स हमारे पास चूँकि G0 फेज़ के अंदर आमतौर पे एग्जिस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली नर्व सेल्स की प्रोटेक्शन और उसके लिए इसके अलावा अगर किसी किस्म की डैमेजिंग हो रही है किसी भी सेल के अंदर तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी आमतौर पर Schwann सेल्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं। Schwann cells are न्यूरोक्लियल सेल्स हैं, लोकेटेड एट द रेगुलर इंटरवल along the axon है। ये excrete करती हैं मेलन शीट। मेलन शीट इज़ एक्चुअली लिपिड कंटेंट, तो इसकी वजह से एक्सोन आमतौर पे हमारे पास वाइट कलर अपीयरेंस शो करता है। और जबकि एक Schwann सेल्स और दूसरे Schwann सेल्स के बीच में जो एरिया है जहाँ पे मेलिनेटेड शीट एग्जिस्ट नहीं करती उसको नोड ऑफ रनवेयर का नाम देते हैं। Melanated sheet act as a barrier, so conduction in a specific direction to impulses provide करते हैं। Melanated sheet जो कि लिपिड कंटेंट है तो किसी किस्म के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अपने अंदर से ट्रांसफ़र होने नहीं देती, तो एक तरह से ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे स्टिल कुछ ज़्यादातर मैसेजेस तो हमारे पास इस एक्सोन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास नोड्स टू नोड ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि ऐसे मैसेजेस के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो सिलेक्ट्री इम्पल्सेस हैं। दूसरे लफ्ज़ों पे हम उसको जंपिंग इम्पल्सेस भी कहते हैं, जो कि आमतौर पे मूव करती हैं फ्रॉम द नोड टू नोड। टाइप ऑफ द न्यूरल सेल्स, हमारे पास जो न्यूरॉन सेल्स के आमतौर पर फंक्शनैलिटी के बेसिस पे उनको आमतौर पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ अ सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। Sensory neurons are responsible to receive the messages from the environment, and they are attached with the sensory cells. या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि they are attached with the receptors and responsible for the transfer of the messages from the receptor to the central nervous system, means spinal cord और brain की तरफ messages को transfer करेंगे। इसकी जो हमारे पास डिफरेंस है वो आपके पास है कि उनके अंदर 1 डेंड्राइट, जबकि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में हमारे पास 1 ही आपके पास एक्सॉन एग्जिस्ट करते हैं। 1 डेंड्राइट और 1 एक्सॉन एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इंटर न्यूरॉन्स में मैनी डेंड्राइट्स और मैनी एक्सॉन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ एग्जांपल्स में जो सबसे सिंपलर हमारे पास जो है इंटर न्यूरॉन के अभी आगे भी डिस्कस की जा रही है, ये आपके पास सेंसरी नर्व्स हैं, जबकि वो आपके पास मोटर नर्व्स में इंटर न्यूरॉन्स में देखेंगे कि आप आमतौर पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते डेंड्राइट और एक्सॉन्स को उनकी अमाउंट के बेसिस पे या उनकी स्लाइड के बेसिस पे। ये आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्टर सेल्स भी हैं, उसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस लेने के बाद डिसीजन करेंगे, डिसीजन को आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा इफेक्टर्स को ताकि रिस्पॉन्स को जनरेट किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ ये इंटर न्यूरॉन्स मैसेजेस को एज अ मेमोरी अपनी बॉडी के अंदर सेव भी करेंगे।
इसके बाद स्टिमुलेट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को ताकि इफेक्टर्स तक वो मैसेज को ट्रांसफ़र किया जा सके रिस्पॉन्स जनरेशन के लिए। मोटर न्यूरॉन्स आमतौर पे मैनी डेंड्राइट्स पे एग्जिस्ट हमारे पास करेगा, और साथ में उसमें जो एक्सोन्स हैं उनकी तादाद भी हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में होती है। दे कैरी द मैसेजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स द effector. Cell body of the nerves grouped together and enveloped by a membrane, then it's named as a ganglion. यानी कि आपके पास अगर ये डिफरेंट हमारे पास इस तरह की डिफरेंट सेल्स मौजूद हों और उन सेल्स के तमाम सेल बॉडीज़ को मेम्ब्रेन में इन्वेलप कर दिया जाता है, तो वो आपके पास जो एक सर्कुलर बॉडी की फॉर्मेशन करेगी, उस सर्कुलर बॉडी को आप आमतौर पे गैंग्लियन का नाम देते हैं। नर्व्स हमारे पास है यूनियन ऑफ मैनी एक्सोन कवर्ड बाय द लिपिड लेयर मेम्ब्रेन है। मिसाल के तौर पर जितने भी नर्व सेल्स हैं वो एक हमारे पास एक्सटेंशन के सूरत में मौजूद हैं, तो जो वहाँ से एक्सोन्स निकल रहे हैं जो कि मैसेज को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनकी यूनियन के नतीजे में हमारे पास नर्व बनते हैं। ये आपके पास ह्यूमन नर्व का हमारे पास कंप्लीट मैप मौजूद है। डिफरेंट एक्सोन राइट फ्रॉम द डिफरेंट न्यूरॉन सेल्स हैव द डिफरेंट फंक्शंस। तो डेफिनेटली अगर वो मोटर नर्व्स के हैं तो डेफिनेटली एक्सॉन्स का फंक्शन जो है वो मैसेजेस को रिसेप्टर्स की तरफ मूव करना है। अगर वो सेंसरी नर्व्स के एक्सॉन्स हैं तो डेफिनेटली वो मैसेजेस को रिसेप्टर्स से कलेक्ट करके हमारे पास बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। और अगर वो हमारे पास मिक्स्ड नर्व में हमारे पास वो दोनों तरह के एक्सॉन्स रखेंगे, आपके पास मोटर नर्व सेल्स के भी और सेंसरी नर्व सेल्स के भी। ब्रेन एंड इट्स डिवीजन में हमारे पास ब्रेन इज़ अ मेन कोऑर्डिनेटेड ऑर्गन ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल काइंड ऑफ द फंक्शन विद इन द बॉडी। दे आर आइदर दे आर वॉलंटरी और दे आर इनवॉलंटरी रिएक्शंस। बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं, चाहे वो आपके कंट्रोल में है मीन वॉलंटरी हैं, या जो आपके कंट्रोल में नहीं है मीन अनवॉलंटरी है, तमाम तरह फंक्शंस की के अंदर बैलेंस को मेंटेन करना, उनकी और बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए उनके अंदर चेंजेस को लेकर आना, या बॉडी के अंदर तमाम तरह फंक्शनैलिटी के लिए हमारे पास ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई ब्रेन हैव टू बी हाईली प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्रेनियम हमारे पास जो हमारे पास स्कल का पार्ट है बोनी स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होता है। इसके हमारे पास क्रेनियम बोन और ब्रेन के बीच में हमारे पास लेयर्स मौजूद होते हैं जिसको हम मेनिंजेस के नेम देते हैं। मेनिंजेस आमतौर पे ब्लड की सप्लाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। उन मेनिंजेस और हमारे पास जो मेन ऑर्गन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में हमारे पास आमतौर पे फ्लूइड एग्जिस्ट करता है। इस फ्लूइड को हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का नेम देते हैं, और ये हमारे पास वर्टिसेस की फॉर्मेशन करता है। ये वर्टिसेस बॉडी को ब्रेन को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं जिस तरह से आपके पास ग्लासवेयर के ऑपरेटर से आप घर लेकर आते देखते हैं उसके गिर्द एक प्लास्टिक मटेरियल मौजूद होता है जिसके अंदर छोटे छोटे बबल्स मौजूद होते हैं, और बबल्स के अंदर एयर ट्रैप होती है ताकि किसी किस्म का भी शॉक लगे तो वो बबल्स तो ब्रस्ट कर जाए, लेकिन जो आपका ग्लास मटेरियल है वो किसी की तरह या फ्रेजाइल जितने भी मटेरियल है वो आमतौर पर ब्रेक डाउन ना हो। इसी तरह से इस ब्रेन की प्रोटेक्शन करने के लिए इस जो हमारे पास लेयर्स हैं वो हमारे पास छोटे छोटे वेंट्रिकल्स बना देते हैं। उन वेंट्रिकल्स के अंदर जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर वर्क करता है, और वो किसी किस्म की शॉक के नतीजे में ब्रेन को होने वाली डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डिवीजन ऑफ ब्रेन में हमारे पास ब्रेन को आमतौर पे 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं। फोर ब्रेन, उसके बाद आपके पास आता है मिड ब्रेन, और उसके बाद आपके पास हाइंड ब्रेन का पोर्शन आता है। फोर ब्रेन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। आपके पास जो थैलेमस आपके पास जो पोर्शन है वो आमतौर पे आपके पास रिसीविंग के लिए जो पी शेप्ड है वो रिसीव करता है मैसेजेस को, और उन मैसेजेस को मॉडिफाई भी करता है और देन फिर उसको ट्रांसफ़र करता है ब्रेन के रिमेनिंग पार्ट के लिए, और इसके साथ ये पेन परसेप्शन भी करता है कि पेन कहाँ पे हो रहा है, किस नोयत का हो रहा है, और साथ में कॉन्शियसनेस मीन स्लीपिंग आपके सोने के अमल को और आपके सोने के बाद जागने के अमल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास थैलेमस एग्जिस्ट करता है। हाइपोथैलेमस एग्जिस्ट आलमंड शेप हमारे पास एग्जिस्ट करता है बिलो द थैलेमस, और जबकि हमारे पास इस जो मिड ब्रेन है उससे अबव एग्जिस्ट करता है, स्मॉल शेप है। नर्व एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के लिए है, जितने यानी मीन केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस का है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करना भी हाइपोथैलेमस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। फोर ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास सेरेब्रम आता है, जो वाइटिश पार्ट है। इस वाइटिश पार्ट में के जो बाहर वाला पोर्शन है ये हमारे पास ग्रेशन कलर है, जबकि इनर हमारे पास वाइट इन कलर। वाइट कलर एरिया के लिए वर्ड यूज़ करते हैं वाइट मैटर विच इज़ कंप्राइजेज ऑफ द एक्सॉन विच आर कम्प्लीटली मेलिनेटेड। हम लोगों ने एक्सॉन सेल नर्व सेल्स के अंदर पढ़ा था कि एक्सॉन सेल्स आमतौर पे मेलिनेटेड शीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि लिपिड लेयर है, और लिपिड आमतौर पे वाइट कलर एक्सॉन को प्रोवाइड करेगी। जबकि जो ग्रेश पोर्शन है ये सेल बॉडी पे एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन है जिसके गिर्द आमतौर पे लिपिड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से वो ग्रे कलर अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। मिड ब्रेन में हमारे पास कनेक्ट फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ये आपके पास फोर ब्रेन और हमारे पास ये जो हाइंड ब्रेन है इसके पोर्शन के बीच में कनेक्टिविटी का पार्ट प्ले करता है, और साथ में हमारे पास जो मैसेजेस जो ईयर की तरफ से आ रहे हैं ऑडिटरी हमारे पास जो स्टिमुलाई है उनको रिसीव करना, और उसके अलावा जो हमारे पास चूँकि ईयर हमारे पास बॉडी के बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लिहाजा मिड ब्रेन जो है वो पोस्चर ऑफ द बॉडी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। It has to receive message and then it has to send the message to the respective part of the forebrain। अगर वो आई से रिलेटेड मैसेज है तो वो हमारे पास फ्रंटल लोब की तरफ भेज देगा, अगर टेम्पोरल की तरफ भेजना है या ऑक्सीपिटल की तरफ भेजना है वो हमारे पास मिड ब्रेन डिसाइड करता है। हाइंड ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट, उसमें हमारे पास मेडुला ऑब्लैंगटा है जो कि सबसे लोअर पोर्शन है, ये कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ, जबकि सेरेब्रम हमारे पास ब्रेन का सबसे लास्ट पोर्शन एग्जिस्ट करता है बैक साइड पे, जबकि पोन्स हमारे पास ये फ्रंट पोर्शन है हाइंड ब्रेन का। ये हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि मेडुला ऑब्लॉन्गटा कंट्रोल करता है तमाम तर अनकॉन्शियस कंट्रोल हमारे पास या इनवॉलंटरी रिएक्शंस या प्रोसेसेस विद इन आवर बॉडी। जितने भी इनवॉलंटरी प्रोसेसेस हैं हमारे बॉडी के अंदर वो मेडुला ऑब्लॉन्गटा कलर कंट्रोल करेगा, जिसमें हमारे पास ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे वॉमिटिंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, ये हमारे पास चूँकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो ब्रेन का पार्ट है वो मेडुला ऑब्लॉन्गटा है। सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स अमंग द मसल मूवमेंट। आपके पास फॉर एग्जांपल चलना है तो चलने के दौरान में हाथों की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, पाँव के आपस में मूवमेंट क्या होनी चाहिए, वो तमाम सेरिबेलम कंट्रोल करेगा ताकि बॉडी के बेस्ट पोस्चर में आपकी बॉडी मूव करे और किसी किस्म के फॉल को अवॉइड करना इसका काम है। पोन्स आमतौर पे मेडुला ऑब्लॉन्गटा के साथ चूँकि एसोसिएटेड है तो वो हमारे पास आमतौर पे फैसिलिटेट करता है इन दी फंक्शनिंग ऑफ द ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग हमारे पास फंक्शनिंग है मेडुला ऑब्लॉन्गटा की। इस वीक के अकॉर्डिंगली जो आप लोगों को काम करना है, रिव्यू क्वेश्चन में आपने ड्रॉ करनी है उन क्वेश्चंस के साथ डायग्राम जिनके साथ रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली ब्रेन के क्वेश्चन के साथ आप ब्रेन की डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर 1 and 2, शॉर्ट क्वेश्चन में 1, 2 and 3 जो कि रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है उनको करेंगे। इसके साथ यू हैव टू राइट ए डिटेल नोट ऑन अ डिवीजन ऑफ द ब्रेन्स इन 3 मेजर रीजन, और हर एक रीजन की डिस्क्रिप्शन, उनके फंक्शनैलिटी, उनके डिफरेंट जो सेक्शन में डिवीजन, उनकी फंक्शनैलिटी, कंप्लीट क्वेश्चन आपका आएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।